Hello everyone, this is Suvendu Das, your physics mentor, and welcome to our next PYQ session of our chapter Moving Charges Magnetism, that is available in class 12 physics in CBSE as well as in CHSE also. For every board exam, this type of questions are very essential because these are completely previous year questions available in our or related to our chapter Moving Charges and Magnetism. So in our first PYQ session, we have already covered up to 18 number of questions as. So from question number 19, today we will start from question number 19. So without any delay, let's start our session. So try to cooperate and listen to the content carefully so that it will be easier for you to understand this one. And we all know that this chapter is very essential as it is completely related to magnitude as well as direction, because magnetic field is completely a vector quantity, and vector quantity is associated with three things. One is your magnitude, another one is direction, and other one is vector addition and vector subtraction, vector algebra. So everything we have to focus upon this chapter. So be very attentive to this lecture. So our question number 19 is telling a galvanometer of resistance G is converted into a voltmeter of range 0 to V volt. Okay, by connecting a resistor of 250 ohm with it. Yes. So here our galvanometer is connected to a voltmeter by connecting with a resistance 250 ohm with it. अरे यार galvanometer को voltmeter पे कन्वर्ट करने के लिए एक एक्सटर्नल रेजिस्टर जिसका वैल्यू लार्ज होना चाहिए, तो सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए किसके साथ? galvanometer के साथ. एंड एज पर द क्वेश्चन इसके साथ कनेक्ट होने के बाद ये सिस्टम का रेंज कितना हो गया? 3 वोल्ट. अच्छा 3 वोल्ट दिया है ना, सॉरी 0 टू V वोल्ट दिया है, मींस V वोल्ट. नाउ इफ द रेजिस्टर ऑफ 250 ओम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर रेजिस्टर 900 ओम. अरे इसको हटाकर एक 900 ओम रेजिस्टर हम लोग अटैच करेंगे. सो क्वेश्चन इज पूछ रहा है, देखो इट रेंज बिकम्स 0 टू 3 वोल्ट, हो जाएगा 3V. So the resistance of the G of the galvanometer is dash. Okay, in second case it is telling ये था हमारा क्या? This is our galvanometer and now 250 ohm resistor is replaced with 900 ohm resistor and ये अभी इसका रेंज हो गया कितना? वोल्ट. तो पूछ रहा है तुम्हारा galvanometer का रेजिस्टेंस क्या है आज पर तो ये देखो 2026 set 54 55 public 4 public 3 very recent question, one of the finest. अरे galvanometer same to same दोनों केस. That means same galvanometer means it will allow its maximum value to pass through it. That's the concept. तो यहाँ पे हम लोग को ये सोचना चाहिए, let Ig is the maximum current that can be passed through the galvanometer. It is the range of the area. It is showing the maximum range ना. For this case, it is showing 0 to V volt. And it is maximum कितना? V volt. That means maximum current जा रहा है इसमें. अच्छा galvanometer सेम टू सेम, तो करंट भी उसके अंदर मैक्सिमम भी फ्लो करेगा, बस सेम करंट फ्लो करेगा, galvanometer चेंज नहीं हुआ है. So as per this figure, what will be the equation? V is equal to current into resistance. Resistance कितना? They are in series G plus 250. Perfect. यहाँ पे कितना होगा? Voltage equal to current into net resistance G plus 900. बस. और इसके बाद क्या करोगे? ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करो, ऐसा कुछ कारसादी करना चाहिए हमको, जैसे कि G का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर देंगे. So after this what we have to do? From this who can say what is the value of V by Ig? Sir, V by Ig equal to G plus 250. बस. इसमें V by Ig कितना होगा? इसमें सॉरी 3V by Ig का वैल्यू होगा G plus, अरे यार V by Ig यहाँ पे हमको मिला है ना G plus 250. Put this respective value. So 3 into G plus 250 is equal to G plus 900. तो ये कितना हो गया साला? 3G प्लस ये कितना 750 G प्लस 900. तो 3G माइनस G 2G, 900 माइनस 750, 900 माइनस 750 कितना हुआ? 750 800 150. सो 2G इज इक्वल टू 150 एंड G का वैल्यू क्या मिलेगा? 150/2, दैट इज 75 ओम. ओके, so this 75 ohm option is our perfect answer. I think it is very clear to all of you.
without any delay. Please do it. Please do it and solve this type of question. These are very essential for this upcoming board exam. Next, come to our question number 20. Question number 20. अरे वाह, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के बारे में कुछ ना कुछ पूछ रहा है वो। नो 20 सॉरी, और थोड़ा लेना चाहिए। आ गया। देखो ये दिखने में एक्चुअली बहुत लंबा क्वेश्चन, लेकिन ट्रिक के साथ करने से ये जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में हम लोग ज्यादा टाइम स्पेयर करने से उसके बाद भी हमारा बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है सेक्शन बी सी डी ई। ओके, so 4 long thin wires are held vertically at the corners A, B, C, D of a square of side A. Okay, here a square, it is having side A, each side is A, and 4 straight current carrying conductors are placed at 4 corners of the given square A, B, C, D. 4 corners are A and A, B, C and D. लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, kept on a table and carry equal current I. वो भी very good, all are carrying equal current I. तो wire at A carries current in upward direction. परफेक्ट। यहाँ पे मैं एक डॉट सिंबल दे रहा हूँ। डॉट सिंबल पता है तुमको? डॉट मीन्स आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पॉइंटिंग आउटवर्ड। इसमें करंट जा रहा है आई रे बेटा। देन whereas the current in the remaining wires flows in the downward direction. Okay, that means B पे भी क्रॉस, B पे भी क्रॉस, B पे भी क्रॉस। Then the net magnetic field at the center of the square will have the magnitude. Net magnetic field at the center will have the magnitude. Some options are available. Here it is written in magnitude and these are written in direction. देखो अच्छा बात क्या है, फोकस करना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट करना चाहिए हमको, ओके, लेकिन डायरेक्शन को देखो, ओसी ओडी ओबी ओए ऑल आर डिफरेंट डायरेक्शंस। दैट मींस कोई तो यहाँ से करेक्ट होगा ना। पहले डायरेक्शन को प्रायोरिटी दो, instead of running behind the magnitude part. If you will focus upon the direction, then we can save our time. That's the trick in this case. अच्छा, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में कंसीडर करूंगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कंसेंट्रिक सर्कल, एंड दे ऑल द सर्कल्स आर लाइंग इन वन प्लेन। ओके, कंसेंट्रिक सर्कल्स। बस करंट अपवर्ड जा रहा है। Current upward means right hand curve rule. This will be in anti-clockwise direction. This is also well known to us. लेकिन एक पॉइंट में दे रहा हूँ, ये पॉइंट करंट कैरिंग कंडक्टर ना आई, चारों तरफ भी देखो मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब, if I will draw a diagram like this, suppose this is your current carrying conductor carries current I in outward direction, उससे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? पोलर शेप होगा ना। आयरन फिलिंग्स अरेंज themselves in concentric circle। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे, at any point how can we determine the direction of magnetic फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई भी पॉइंट ले जाओ, टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसमें टेंजेंट रखने से ऐसा होगा, देखो बस ऐसे ही। यहाँ पे ये क्या है? करंट इज फ्लोइंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन मींस उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऐसा कुछ होगा, पक्का। देखो ये डायग्राम करने से बेकार दिखा देगा डायग्राम, ओके, सॉरी कंसेंट्रिक सर्कल करने से, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। आराम से देखो। परफेक्ट नहीं हो पाएगा तो चलेगा, लेकिन समझना चाहिए तुम लोगों को। इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं रेड कलर पे सिंक है। अच्छा, तो एज पर द फिगर, करंट जा रहा है आउटवर्ड मींस एंटी क्लॉकवाइज एट दिस ओ पॉइंट। एट दिस ओ पॉइंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो ऐसे जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो टेंजेंट ड्रा कर दो ऐसा। अभी समझ में आया तुमको? ए पॉइंट पे करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंट ड्रा करने से टुवर्ड्स ओ भी आ रहा है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, लेकिन ये तीनों को कंपेयर करो फिर से। इसमें इनवर्ड जा रहा है, ए से क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा तो ए से घूमकर ए से वो आएगा, ऐसे ऐसे, बस ऐसा चलेगा ना। यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करने से टुवर्ड्स ओ ए, दैट इज माय पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा? टुवर्ड्स, ये किसके लिए हुआ रे? P ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर A। रेडी? देन ये किसके लिए होगा? B के लिए, इधर आ रहा है। P के लिए टुवर्ड्स क्या आ रहा है? टुवर्ड्स OA। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
POR, परफेक्ट। सी पे देखो, सी पे इनवर्ड क्लॉकवाइज, एंड फिर से मैं बोल रहा हूँ अभी क्लॉकवाइज होने से ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल पास इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करने से ऐसा होगा। दैट मीन्स फिर से टुवर्ड्स ओबी आ रहा है ना, वेरी गुड। टुवर्ड्स ओबी में लिख रहा हूँ, देखो फिर से मैं ड्रा कर रहा हूँ। यस यस, ये किसके लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर। एंड डी के लिए फिर से देखो, डी के लिए क्लॉकवाइज ऐसा कंसेंट्रिक सर्कल होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड वो पॉइंट पे टेंजेंट करने से ऐसा होगा टुवर्ड्स ओसी। टुवर्ड्स ओसी मींस हम लोग ऐसे ड्रा करेंगे टुवर्ड्स ओसी, ये ओके। मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर डी, सॉरी, समझ में आया। लेकिन बहुत बेहतरीन बात है क्या है, ईच एंड एवरी करंट कंडक्टर सेम करंट अंदर पास हो रहा है, एंड सेकेंड थिंग दे आर कैरिंग सेम करंट, एंड यहाँ से ओ पॉइंट से ए बी सी डी का रेस्पेक्टिव डिस्टेंस क्या है, बराबर ही है। अरे ए ना, तो ये कितना होगा, √2 है, √2 बाई 2 ये डिस्टेंस होगा, सारा का सारा डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड E ड्यू टू BOR एंड B ड्यू टू DOR, दोनों क्या करेंगे, दोनों को विल कैंसल आउट ईच। अरे भाई, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन एट पॉइंट O, दे विल कैंसल। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां पे दिखाई दे रहा है, along OB, and along OB means only one option is there, correct, done, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। रेडी, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग, फॉर्मूला पता है, रेडी, इसको कमेंट करो उसका मैग्नीट्यूड क्या आया, ओके। उसके बाद मुझे पता चलेगा एक्चुअली तुम लोग सॉल्व किए हो या नहीं। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, 20 खत्म हो गया, 21। If you are watching this video and if you are thinking that it is helpful for your friends, those who will appear 2027 CBSE board exam as well as HSC board exam, then you can share this video, okay। So क्वेश्चन को पढ़ो अभी, क्या होगा। The charge particle of mass m having kinetic energy k passes undeflectedly through a region with electric field E vector and magnetic field V vector acting perpendicular to each other. The mass of the particle will be dash। ये कौन सा कॉन्सेप्ट पता है तुमको, वेलोसिटी सिलेक्टर कंटेंट पता नहीं तो मैं थ्योरी थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज कर रहा हूँ। सपोज ऐसा कर दो, ये दीज आर टू प्लेट्स, ऐसा समझो, लेट अस थिंक दीज आर टू प्लेट्स, चार्ज प्लेट्स, ओके, टू चार्ज प्लेट, एंड इस चार्ज प्लेट में ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज प्लेट। अच्छा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दीज आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, वेरी गुड। एंड अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसा बिहेव कर रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड को मैं ग्रीन कलर पे ऐसे दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा सोचो कि दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field is pointing inward and electric field is pointing from positive negative plate, okay। That means E vector are perpendicular to B vector, तो दिखाई दे रहा है साला E vector तो ऐसे, B vector तो सॉरी E vector ऐसे, B vector ऐसे, inward perpendicular to each other। एंड इसमें कंसीडर करो एक चार्ज पार्टिकल अवेलेबल है Q, ये अभी मूव कर रहा है ऐसे E vector पे, पता चल रहा है एक्चुअली क्या तुमको पता चलेगा, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा ऐसे, इस Q, एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स अप्लाई करेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, राइट हैंड पाम रूल पता है तुमको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का शॉर्टकट, ये फिंगर करंट कैरिंग सॉरी करंट का डायरेक्शन शो करेगा और पॉजिटिव चार्ज का मोशन, these four fingers will represent the direction of magnetic field, then the palm facing towards the direction that represents the direction of a force experienced by the charge particle। अरे यार, ये चार फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे प्लेस करोगे, इसको करंट के डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, then palm represents the direction of the force expressed by the current carrying conductor। मैग्नेटिक फील्ड, अरे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का मोशन देखो ऐसे हो रहा है, थंब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, पाम कैसे शो कर रहा है ऊपर, तो ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई होगा,
QVB sin थीटा कितना sin 90, B वेक्टर एंड B वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, sin 90 होगा, sin 91 QVB। तो एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है इसमें, तो इफ force due to electric field is equal to force due to magnetic field, then what you will get, QE is equal to QVB. Then we can say if QE is equal to QVB, we can after cancellation of Q, E is equal to how much, VB, and what is the value of V, Q will be equal to E by। तो क्वेश्चन पूछा है तुमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, अरे यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ द पार्टिकल V स्क्वायर, एंड वेलोसिटी सिलेक्टर का कंडीशन से E बाई V मिल रहा है तुमको, तो हाफ m इंटू E बाई V होल स्क्वायर, दैट मीन्स m स्क्वायर बाई 2 V स्क्वायर इज इक्वल टू K। क्या पूछा है, मास ऑफ द पार्टिकल विल बी, मास कितना मिलेगा हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे, 2K B स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर, 2K B स्क्वायर बाई स्क्वायर, 2K B स्क्वायर बाई 2K B स्क्वायर बाई स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो बोर्ड कितना शानदार तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है ना, उसको ऑब्जर्व करो। ओके, वेलोसिटी सिलेक्टर का कंडीशन ये वाला चीज, दिस इज वेल नोन टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, तो इसीलिए वी हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज तो प्रायोरिटी देना चाहिए हमको नोट्स को, नोट्स तो पढ़ोगे, ओके, चैप्टर में क्या अवेलेबल है क्या नहीं है तो अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए हमको, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से दैट विल बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। So now see, a charged particle is moving in a uniform magnetic field V vector with a constant speed V in a circular path of radius r. Which of the following graphs represents the variation of radius of the circle with the magnitude of the magnetic field? अरे यार, radius of the circle का फॉर्मूला क्या है, mv by qb, ये क्या है उसका स्पीड, मास, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, और इसको लिख सकते हो मोमेंटम इक्वल टू p इक्वल टू m इंटू v, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम p by qb, लीनियर मोमेंटम को ये भी लिख सकते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी का रूट ओवर डिवाइड बाय qb, साला k को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऑसिलेटिंग पोटेंशियल का वर्क डन के हिसाब से लिख सकते हैं 2m इंटू चार्ज इंटू ऑसिलेटिंग पोटेंशियल रूट ओवर बाई QB। हाँ, यही तो फॉर्मूला है ना, तो बार बार तो यूज कर रहे हैं हम लोग। तो R फ्रॉम दिस फॉर्मूला, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 by B rectangular hyperbola। Ready? Second option. Is that clear to all of you? I think it is clear. Very good, very good. Next question, next question। 22 खत्म हो गया नहीं, 23। क्वेश्चन पूछा है, देखो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या दे रहा है, 25 में गिरा था 2025 का क्वेश्चन। Assertion is in question, the deflection in galvanometer is directly proportional to the current passing through it। अरे डिफ्लेक्शन इन galvanometer, galvanometer का कॉन्सेप्ट क्या है, आज पर तो galvanometer with radial field B इक्वल टू C phi टॉर्सनल कांस्टेंट, तो पता चल रहा है हमको phi प्रोपोर्शनल टू I, और क्या है, दैट मींस द assertion is correct, assertion is correct। The coil of a galvanometer is suspended in a uniform, अरे यार सच तो, magnetic field, the coil of galvanometer is suspended in uniform radial magnetic field। अरे साला रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेने से ही बीना इक्वल टू C5 मिलेगा, नहीं तो बीना sin फाइ इज इक्वल टू C5 मिलेगा। बीना sin थीटा इक्वल टू C5, थीटा चेंज होने से तो सब कुछ चेंज हो जाएगा ना बस। तो दिस इज करेक्ट आल्सो, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेडियल फील्ड, दैट इज करेक्ट। So both A and R are true, and R is the correct explanation, very very correct explanation of assertion A। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलो। In Angul, we are having our offline classes also. If you are interested to join, then you may come. Okay. तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जीमेल आईडी अवेलेबल है, इस जीमेल आईडी की हेल्प से तुम लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम से हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फॉर बेटर ऑफलाइन क्लास, ओके, यू मे जॉइन विथ आवर क्लासेस। ओके, हो गया।
बहुत परफेक्शन को ढूंढने से क्या होगा, कुछ फायदा नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन बायोचार्ट लॉ का। तो 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ ए ओआर, चला लेंथ दे रहा है फिर से 1 सेंटीमीटर, 10⁻⁻² is lying along x axis, ओके दैट मींस इसको डीएल ले जाओ ना, तो डीएल वेक्टर कितना 10⁻⁻, x एक्सिस दे रहा है आई कैप, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, आई जा रहा है तुम्हारा 1/2 एम्पियर, ओके देन ए मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज एक्जिस्टिंग ऑफ अ मैग्नीट्यूड 0.4 मिली टेस्ला जे कैप प्लस 0.6 मिली टेस्ला के कैप रे बाबा is switched on in the region, the force acting on the segment, भाई रे भाई df equal to force acting पूछ रहा है, ओके तो dl क्यों लिए हम लोग, बस सिंपली कंसीडर करो ना l वेक्टर, फोर्स एक्टिंग पूछा है वो, वेरी गुड ना, उन बायर शॉर्ट्स का नहीं, f इक्वल टू फॉर्मूला क्या है आई एल बी साइन थीटा, और इन वेक्टर फॉर्म इट इज मेंशनिंग, एंड वेक्टर फॉर्म में क्या करोगे, वेक्टर फॉर्म पे f वेक्टर इक्वल टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, भाई क्रॉस प्रोडक्ट तो पता होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एल आई का वैल्यू क्या है 1/2, देन हमारे एल वेक्टर 10⁻⁻² आई कैप में लिख रहा हूँ, क्रॉस बी वेक्टर इज 0.4 मिली टेस्ला जे कैप, अच्छा यूनिट तो नहीं लिखना चाहिए, बस मिली लिखो, मिली जे कैप प्लस 0.6 मिली जे कैप, वेरी गुड। ऑप्शन को देखो, ऑप्शंस आर अवेलेबल इन माइक्रो 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 माइक्रो, कैसे माइक्रो को एक्सट्रैक्ट करोगे उससे सोचो बस, ओके देखो ये 10⁻⁻² को बाहर ले रहा हूं मैं, डिवाइड बाई 2 लिख दिया मैंने, ब्रैकेट दे दिया, आई कैप अवेलेबल है, क्रॉस, वेरी गुड, ये 0.4 का मतलब क्या है 4 इंटू 10⁻⁻1, उसके बाजू में क्या लिखा है मिली 10⁻⁻3, ये साला 4 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻3, 4 इंटू 10⁻⁻4, तो इसमें आ रहा है 4 इंटू 10⁻⁻4 जे कैप प्लस सेम टू सेम 6 इंटू 10⁻⁻4 के कैप, एक काम करो ये दोनों में से 10⁻⁻4 को कॉमन ले आओ ना, 10⁻⁻4 कॉमन ले आने से इधर अवेलेबल है 10⁻²/2, सो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻²/2 इंटू 10⁻⁻4, ब्रैकेट के अंदर जो भी है अभी कारसादी करेंगे हम लोग, ये तो कॉमन आ गया 10⁻⁻4 ना, सो 4 इंटू 1, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मीन्स 1, 4 इंटू 1 आई क्रॉस जे, दैट मीन्स 4 आई कैप क्रॉस जे कैप, समझ पा रहे हो, बार बार देखो वेक्टर वेक्टर, तो 1 इंटू 6 6 आई कैप इंटू के कैप, क्योंकि 10⁻⁻4 कॉमन चला चुका है अभी, 1 इंटू 6 6 आई क्रॉस के, 6 आई क्रॉस के, अच्छा ये तो मुझे आई थिंक यू नो ऑल दिस थिंग्स, आई जे के, इधर आने से पॉजिटिव होगा, इधर आने से थर्ड टर्म नेगेटिव होगा, आंसर हो जाएगा, सो उसी हिसाब से भागते रहो, ये हो गया 10⁻, ना हुआ -6 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे क्या हो रहा है रे 4 इंटू आई क्रॉस जे प्लस के क्या प्लस 6 आई क्रॉस के माइनस जे क्या माइनस जे, बस तो क्या करना चाहिए, ये 2 इन 4/2 3, तो 10 ये होगा तुम्हारा 4/2 इज 2 के क्या -6/2 3 जो क्या इंटू 10⁻⁻6 मीन्स माइक्रो यूनिट होगा टेस्ला, तो 2k-3j 2k-3j माइक्रो न्यूटन, ओ भाई सॉरी 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 टेस्ला नहीं रे बेटा, न्यूटन फोर्स पूछा है ना, वेरी गुड, तो 2k-3j माइक्रो न्यूटन, दिस इज आवर परफेक्ट आंसर एज पर द, ओके नेक्स्ट वन, दिखाई दे रहा है लेटर साइज सबको ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, जो भी दिक्कत हो रहा है ना थोड़ा कमेंट बॉक्स में अपडेट कर देने से मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा, और क्या कर सकता हूँ उसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ, नेक्स्ट डू इट, पॉज द वीडियो एंड डू इट, देखो कर पा रहे हो या नहीं, इतना सारा क्वेश्चन होने के बाद
ये 25 क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं। ए 1 सेंटीमीटर लॉन्ग सेगमेंट, a straight segment of a conductor carrying 1 ampere current in x direction lies symmetrically at origin of Cartesian coordinate system. So magnetic field due to this segment at point 110. ओ भाई साहब, सिमेट्रिकली ओरिजिन पे प्लेस हुआ है। अच्छा, दैट मींस 1 सेंटीमीटर मींस हम लोग को सोचना चाहिए डीएल वेक्टर दे रहा है बाबा 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर माइनस along x डायरेक्शन। करंट जा रहा है x डायरेक्शन मींस डीएल वेक्टर को हम लोग मानेंगे आई कैप, करंट एलिमेंट ना, करंट जा रहा है कितना 1 एम्पियर, परफेक्ट। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेगमेंट एट, ये 1 आई कैप 1 जे कैप 0 के कैप डी सॉरी क्या ले रहा हूं मैं आर वेक्टर ना, बस। अरे यार डीबी का वैल्यू क्या है पता है नहीं, डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl vector cross r vector divided by r vector magnitude whole cube. This is the vector form of Coulomb's law. Coulomb's law, Biot-Savart's law. Bhavan, what are you telling? r vector का वैल्यू क्या होगा 1 i कैप प्लस 1 j कैप और i कैप प्लस j कैप, 0 के कैप छोड़ दो। तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ओवर दैट इज रूट। रेडी? और क्या हो गया आई तो मिल गया सब कुछ। और क्या, अभी बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर परफेक्टली। म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा 10 टू द माइनस 7, करंट का वैल्यू दे रखा है 1, डीएल क्रॉस आर, डीएल हो गया तुम्हारा 10 टू द माइनस 2 आई कैप, देन क्रॉस आर वेक्टर हो रहा है आई कैप प्लस जे कैप, देन ब्रैकेट, देन आर क्यूब रूट 2 का होल क्यूब दैट इज 2 रूट 2। इसका आंसर क्या होगा देखो, ये 10 टू द माइनस 2 को बाहर ले आओ, 10 टू द माइनस 7 इंटू 10 टू द माइनस 2 डिवाइड बाय 2 रूट 2, देन क्रॉस करो आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप प्लस आई कैप प्लस प्लस आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, बस आंसर कितना हो रहा है 10 टू द पावर। यहाँ पे देखो -9 है सब कुछ ऑप्शन पे, -9 -10, ओरे बापा ये तो -9 हुआ है, 10 टू द पावर -9 बाई 2 रूट 2 इंटू आई क्रॉस आई तो 0, आई क्रॉस से होगा क्या क्या स्मॉल टेस्ला। लेकिन 10 टू द पावर -9 बाई 2 रूट 2 कहाँ है क्या, 10 टू द पावर -9 बाई 2 रूट 2 नहीं है कुछ, तो -10 पे कन्वर्ट करो। ऐसे करेंगे हम लोग, एक काम करेंगे 10 टू द पावर -9 बाई 2 रूट 2 ऐसे लिखो, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो 10, नीचे भी मल्टीप्लाई करो 10, ऊपर मल्टीप्लाई करो 10, नीचे भी मल्टीप्लाई करो 10, 10 जो भी लिखा है लिख लो, क्या टेस्ला। अच्छा इसका आंसर क्या हुआ -9, इसका पावर 1 है, ऊपर चला जाएगा तो -1 -10 हो गया देखो, इक्वल टू समथिंग इनटू 10 टू द पावर -10, हाँ क्या टेस्ला। एंड इसका वैल्यू क्या हो रहा है 2 10 बाई 2 5 5 बाई रूट 2, तो 5 बाई रूट 2 into 10 to the minus 10 k cap, 5 by root 2 10 to the minus 10 k cap. Option C your correct answer, 5.0 means 5 by root 2। हो गया तुम्हारा with 30 minutes nearly, फिर opportunity for 30 minutes of this session and 25 तक हो गया, 19 20 7 क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा टाइम ले रहा है ना, कैलकुलेशन भी, बस एंड ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो मैं उड़ा दूंगा उसको। A long straight हो यार क्वेश्चन पास करने के लिए क्या क्वेश्चन देखो, a long straight wire is held vertically and carries a steady current in upward direction. The shape of the magnetic field lines produced by the current carrying wire, हाथ पे upward direction में करंट जा रहा है, बहादुरी क्या है इसमें, current is flowing in upward direction, हाँ, concentric circles एंटी क्लॉकवाइज, और कितना बार बोलेंगे हम लोग इसको, हाँ तो आंसर क्या होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू करंट कैरी कंडक्टर, नहीं concentric horizontal circles अराउंड दो यार, horizontal circles, concentric horizontal circles around the wire. I think it is very easy for you. Okay, next question number 26, question number 26, sorry 26 तो खत्म हो गया, 27 के पास चलो। डायरेक्शन फायरेक्शन बहुत अच्छा है एक्चुअली, ओके शुरू से कंटेंट पता होने से आराम से तुम लोग सॉल्व कर पाओगे, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके।
If you are thinking that you are lagging some concept, okay, then try to cover up that concepts. Actually, because of unavailability of time, I am unable to upload the lecture actually, a theoretical lecture of this chapter. But I will try my best in this week to upload this content one by one. Trying. A particle is having a charge plus q enters a uniform magnetic field B vector as shown in the figure. ये है तुम्हारा पार्टिकल, ये आदमी साला घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसका डायरेक्शन इनवर्ड अवेलेबल है. ओके. The particle will describe a circular path in xz plane, a semicircular path in xy plane, a helical path with its axis parallel to y axis, and semicircular path with its in yz plane. क्या पाथ होगा, कैसे पता चलेगा? देखो, अरे भाई मैंने particle is moving here, v vector is perpendicular to b vector. कुछ दिखाई दे रहा है तुमको? और हम लोग को रट्टा मार चुके हम लोग. When v vector is perpendicular to b vector, then path prescribed by the prescribed बोला हूँ, described by the particle will be circular. When v is perpendicular to b vector, when velocity vector is perpendicular to magnetic field vector, then the path described by the moving charge particle because of the presence of magnetic field will be circular. बट ब्लाइंडली ऐसे करने से नहीं होगा क्योंकि नीचे वाला मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है. तो देखो, ये वेलोसिटी वेक्टर पॉजिटिव चार्ज का मोशन थंब को प्लेस कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड चला इनवर्ड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज पार्टिकल कितना होगा, ऐसे कौन सा डायरेक्शन, एफएम वेक्टर विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. पैम तो ऐसा शो कर रहा है ना, तो हम लोग इसको बोल रहे हैं तू साला सीधा चल, ये बोल रहा है नहीं तू इधर, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीस टू थिंग्स कैसे फॉर्म हो जाए पैराबोलिक. अच्छा, एट एनी इंस्टेंट हम लोग इसका वेलोसिटी वेक्टर चेक करेंगे तो ये होगा वेलोसिटी वेक्टर. वेरी गुड. एंड वेलोसिटी एट दिस पॉइंट ये है तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फोर्स इधर आ रहा है, ऐसे शो कर रहा है फोर्स एफएम वेक्टर. अभी देन क्या होगा, ऐसे भी जाना चाह रहा है वो, वैसे भी जाना चाह रहा है टेंजेंशियली, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस टू थिंग्स फिर से उसका पाथ को ऐसे कर देगा. ओके, पैराबोलिक हो जाएगा. समझ पा रहे हो? फिर से एट एनी पॉइंट इफ यू विल चेक, फिर से वो डेविएट होगा ऐसे 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 करके, पाथ विल बी सर्कुलर. बी केयरफुल, नीचे वाला अवेलेबल नहीं है ना, नहीं तो सर्कुलर होगा. उसका रेडियस है mv/qb. नहीं, देन ये क्या होगा, सेमी सर्कुलर पाथ इन xy प्लेन. ये तो xy प्लेन ना. वेरी गुड. सेमी सर्कुलर पाथ इन xy प्लेन आ रहा है. नेक्स्ट, ओके देखो, what the question is telling, first you read this one. A particle with charge q, a particle with charge q, दिखाई दे रहा है ठीक से? वेरी गुड. A particle with charge q moving with velocity v vector equal to v naught I cap enters in a region with magnetic field v vector equal to b1 j cap plus b2 k cap. The magnitude of the force expressed by the particle, direct force expressed by the particle, f vector equal to charge दे रखा है, वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, f इक्वल टू q इनटू v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर. वेरी गुड. तो q दे रखा है, देन वेलोसिटी वेक्टर दे रहा है तुमको v नॉट आई कैप, v वेक्टर दे रहा है v1 कैप प्लस 2 कैप. एंड मैं बोल रहा था हर बार तुमको ये v नॉट को बाहर ले आओ, मिलेगा तुमको q v नॉट, और क्या बचेगा i कैप क्रॉस v1 j कैप प्लस v2 k कैप. फिर से उसको प्रोसीड करो कैलकुलेशन को. क्यू वी नॉट ब्रैकेट b1 इंटू 1 यहाँ पे लिखा है, कितना होगा b1 i क्रॉस j, b1 i कैप क्रॉस कैप प्लस b2 इंटू 1 दैट इज b2 i कैप क्रॉस. देन उसका कैलकुलेशन क्या मिलेगा हमको कैलकुलेशन करने से, तो क्यू वी नॉट p1 i क्रॉस j होगा तुम्हारा k कैप प्लस P2 I क्रॉस के माइनस. ओके, तो क्यू वी नॉट कैसे लिख सकते हैं हम लोग, माइनस b2 क्या प्लस b1. हो गया रे बेटा,
दिस इज योर एफ वेक्टर। क्वेश्चन क्या पूछा है तुमको? ओ माय गॉड, द मैग्नीट्यूड पूछा है वो। प्रभु, मैग्नीट्यूड कितना होगा? एफ वेक्टर मॉड। हाँ, इसका तो मैग्नीट्यूड क्यू भी नॉट, ये तो वेक्टर कि जे कैप प्लस के कैप, जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का अरे माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, प्लस होगा मान, तो जे के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट ओवर, तो क्यू भी नॉट इंटू बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, क्यू भी नॉट इंटू बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर इज अवेलेबल। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। Option C is your answer as per the given question. I think it is clear. I think it is clear to all of you. Very good, very good. Next, 9. देखो, what the question is telling. A particle of mass m, charge q, moves along y-axis in a region in which uniform magnetic field is pointing along x-axis. Okay. क्या दे रखा है, फिर से पढ़ो। Particle of mass m, charge q, moves along a y-axis. That means v vector equal to हम लोग लिख सकते हैं v ये क्या, in a region in which a uniform magnetic field B vector is pointing along x-axis. So B vector is B. क्या कैसे हो सकता है? तो लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विल पॉइंट अलोंग। अरे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, तो लॉरेंस फोर्स होगा तुम्हारा एफ लॉरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? LORENT। F Lorentz will be equal to force expended by the charge particle due to magnetic field Q into B vector cross V vector। अबे यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं पूछा है, बस डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन ऑफ FM वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ FM वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। एंड ये V वेक्टर पे देखो J कैप, B वेक्टर पे I कैप, J कैप क्रॉस I कैप, एंड J कैप क्रॉस I कैप क्या है? J कैप क्रॉस I कैप I J K, J क्रॉस I माइनस के कैप, माइनस के कैप का मतलब क्या है? नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस है तुम्हारा आंसर, खत्म, नेगेटिव जेड एक्सिस। आई थिंक इट इज क्लियर। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 29 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक छोटा सा बहुत बहुत प्यारा सा एक पैराग्राफ अवेलेबल है। ओके, थोड़ा सा पेन से कर तो पढ़ो, मैं थोड़ा पानी पी रहा हूँ। ये एक्चुअली टाइम कितना है पता है तुमको? रात का 2:30। हाँ, देखो यहाँ पे कितना टाइम लिखा है, 2:30। तुम लोग पढ़ो अच्छे से। 120 days आर देयर ओनली टू कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स। के बाद जनवरी मंथ में तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम, टाइम नहीं मिलेगा तुमको सेल्फ स्टडी करने के लिए। क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने के तो छोड़ दो, सेल्फ स्टडी मीन्स जो भी थियोरी तुम लोग पढ़ चुके हो ना, उसको रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सो ट्राई टू एडजस्ट योर टाइम फ्रॉम दिस टाइम, ट्राई टू रिवाइज। ओके, डोंट स्पॉइल योर टाइम अननेसेसरी। Case study question: a galvanometer is an instrument used to show the direction and strength of the current passing through it. In a galvanometer, a coil placed in a magnetic field experiences a torque and hence gets deflected when a current passes through it. The name is derived from the surname of the Italian scientist L. Galvani, who in 799 discovered the electric current makes a dead flux spring attached with the coil provides a counter torque. In equilibrium, the deflection torque is balanced by the restoring torque of the spring, and we have NBAI, और बिना जो मैं बोला था NBAI equal to K phi, where N is the total number of turns of the coil, A is the area of pulsation of the each turn, then B is the radial magnetic field, and K is the torsional constant or restoring torque developed per unit twist, that is called torsional constant रे बेटा। कहाँ गया? Yes, and phi is the angular deflection of the coil. As the current Ig
which produces full scale deflection in the galvanometer is very small. So galvanometer cannot as such be used to measure the current in electric circuit. A small resistance called shunt of a suitable value is connected with the galvanometer to convert it into an ammeter of a desired range. By using the higher resistance, a galvanometer can also be converted into a voltmeter. The value of the current sensitivity of galvanometer is given by, oh my god, Pina is equal to K5. Current sensitivity, deflection per unit current. This will be Ban by K, Ban by K, BAN by K, NBA by K. वेरी इजी, दिखाई दे रहा है तुमको? बस पता होना चाहिए फाइव बाई आई को करंट सेंसिटिव बोलते हैं, अभी जाकर सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो हाथ से छूट जाएगा बस। ना वो देखो क्या दे रहा है ना, यस। क्वेश्चन नंबर 31, a galvanometer of resistance 6 ohm shows full scale deflection for a current of 0.2 ampere। अरे भाई galvanometer of resistance 6 ohm, full scale deflection means maximum current that can be passed through this, it is 0.2 ampere। The value of the shunt to be used with this galvanometer to convert it into an ammeter of range 0 to 5 ampere। तो यहीं से हम लोग को किसको कनेक्ट करना चाहिए, शंट। शंट यहाँ पे कनेक्ट होगा, जैसे कि ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 एम्पियर वाला एक एमीटर पे। वेरी गुड। तो इसमें करंट कितना जा रहा है गैल्वेनोमीटर पे? गैल्वेनोमीटर पे करंट आई जी 0.2 एम्पियर जा रहा है। तो ये तो 5 एम्पियर आ रहा है ना, शंट पे कितना चला जाएगा? 5 माइनस 0.2 एम्पियर। 5 minus 0.2 कितना? 4.8। So at this across these 2 points, potential difference remains same. So voltage across G is equal to voltage across shunt. Current into resistance equal to voltage I into R. 0.2 into 6 is equal to 5 minus 0.2 is 4.8. 4.8 into S। कितना हुआ ये? 0.2 into 6 1.2 इक्वल टू 4.8 एस। एस का वैल्यू कितना मिला? 1.2 बाई 0.8, कितना हुआ? 1 बाई 4, 0.5 ओम, 0.25 ओम। करेक्ट आंसर, फिनिश। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीक्यू क्वेश्चन रे बेटा। अच्छा, the value of the resistance of the ammeter will be the value of the resistance of the ammeter। अरे भाई फिर से वो डायग्राम सोचो, कितना क्या दे रहा था एक्चुअली? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया था, इसका रेजिस्टेंस हम लोग अभी कैलकुलेट कर चुके थे। इसका रेजिस्टेंस क्या मिला? 0.25 ओम। गैल्वेनोमीटर का दे रखा था 6 ओम प्लस 0.25 मींस इसको ले जाओ 1/4 ओम। तो दोनों का कंबाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? बोथ आर इन पैरेलल, तो R equivalent is equal to multiplication by addition। 6 into 1/4 plus 6 plus 1/4 कितना मिला? 6/4 डिवाइड बाई 25/4 कितना हुआ? 6/25 नहीं, 6/25। हाँ है ना, क्या कुछ इधर उधर हो गया? मल्टीप्लीकेशन बाई एडिशन, यस। 6/25 ऐसे मान लो कितना आ रहा है तुम्हारा? 0.2 100 0.24 ohm। okay, correct, 0.24 ohm is your answer। then next question, फिर से वही, इसमें एक्चुअली दो क्वेश्चन कंबाइंड हुआ है। ओके, एक एक सॉल्व करेंगे।
आई थिंक क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है ना सबको, दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। A galvanometer is converted into a voltmeter of range 0 to V volt by connecting it with a resistance R1. भाई galvanometer कितना करंट जा रहा है इसमें, IG, इसके साथ रेजिस्टेंस में अटैच किया हूँ, ये कितना R1, ये भी कन्वर्ट हो गया, कौन सा रेंज इसका दे रहा है देखो 0 to V volt. And if R1 is replaced by R2, the range becomes 2 volt. बढ़िया, G R1 को रिप्लेस करके R2 अटैच करो, करंट तो गाल्वेनोमीटर सेम टू सेम मींस IG करंट से फ्लो करेगा, रेंज कितना हो गया 2 वोल्ट। क्वेश्चन दे रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द गाल्वेनोमीटर इज डैश, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस कितना G प्लस R। यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस G प्लस यहाँ पे R1, यहाँ पे G प्लस R2। तो क्या पूछ रहा है तुमको, G का वैल्यू क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द गाल्वेनोमीटर, रेडी। तो व्हाट इज V बाई आर जी, इसमें V बाई आई जी, दैट इज G प्लस R1। तो यहाँ पे देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 2V बाई आई जी इज इक्वल टू G प्लस R2, एंड V बाई आई जी के लिए हम लोग यूज करेंगे G प्लस R1, विच इम्प्लाइज 2 इंटू G प्लस R1 इज इक्वल टू कितना G प्लस R2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2G माइनस G, देखो मैं लिख रहा हूँ 2G प्लस 2R1 इज इक्वल टू कितना G प्लस R2। तो 2G माइनस जी, 2G माइनस जी, यहाँ पे क्या है R2 था, जेड से -2R1, -2R1। व्हाट इज 2G माइनस जी, दैट इज G, G इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, यही है ना, R2 माइनस 2R1, यस R2 माइनस से फर्स्ट बिट का आंसर ये वाला, फर्स्ट बिट का आंसर। नेक्स्ट का आंसर मुझे पता नहीं, देखो चेक करेंगे, एक ही साथ मैच करेगा तो करेगा, नहीं तो देन देखो करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर, करंट दे रहा है 5 मिली एम्पियर मींस 10 टू द माइनस 3 एम्पियर, रेडी। देन क्लोज थ्रू ए galvanometer, its coil has 100 turns, n is equal to 100 turns, each area of rotation 18 centimeter square, 18 centimeter square means 18 into 10 to the minus 4 meter square, minus 4 meter square, and is suspended in a magnetic field of 0.20 Tesla. So magnetic field B equal to 2 into 10 to the power minus 1. Bhagavan 0.20, 0.2. Okay. That is deflecting torque will be torque equal to ना formula, torque equal to BI/NA. Put the value 2 into 10 to the power minus 1. करंट दे रखा है 5 into 10 to the power minus 3 into n दे रखा है 100 मीन्स 10 to the power 2, एरिया दे रखा है 18 into 10 to the power minus 4। एक काम करो, ये 2 into 5 कितना हुआ 10, यहाँ पे 10 पर 1, ये 10 पर minus 1, 10 पर 0 इज 1, और क्या बचा 10 to the power 3 बचा, यहाँ पे 10 to the power 2 बच गया, यहाँ पे 10 to the power minus 4 बच गया, एंड ये 18। फाइनल आंसर इज 18 into 10 to the power 3 to 5, 5 minus 4 that is 1, sorry 5 minus 4 is 1। कितना दे रखा है 1.8 ना, तो एक काम करो, हमें मिस्टेक हुआ 5 मिली एम्पियर 100 टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 1.8 10 पर माइनस 4 आ रहा है, तो भाई 2 into 10 to the power minus 1 तो 10, ओ भाई सॉरी 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 2 into 5 10, 10 पर 1, 10 पर minus 1, 10 पर 0, 10 पर minus 3 अवेलेबल है भाई, minus 3 minus 4 हो गया minus 7, एंड minus 7 plus 2 minus 5, तो 1.5 पे दे रहा है ना, तो डिवाइड 10 into 10 कर दो, डिवाइड 10 into 10, ये मिल गया हमको 1.8 into 10 to the power minus 5 plus 1 minus, और का यूनिट न्यूटन मीटर।
1.8 10 to the minus 4, 1.8 10 to the minus 4, ये सेकेंड बिट का आंसर ये होगा 1.8 10 to the minus 4. ओके, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन था, हटा जो गया मैं किया. ओके, दैट्स द रॉन्ग कंटेंट. नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक ये है एक्चुअली, ये बोर्ड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन गिरा है ना, चल का चेक करके तुमको भी पता चलेगा. ये 10 टू द पावर कितना दे रखा है, मैं करेक्शन किया था, रुको रुको रुको, 10 टू द पावर 6 शायद दे रखा है. यस, 10 टू द पावर 6 दिया है. ओके, तो वैल्यू क्या है, नॉट 7, दैट इज 10 टू द पावर 6. नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस. A charge particle gains a speed of 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड. तो गिवन दे रखा है तुमको स्पीड 10 to the power 6 ना, स्पीड v is equal to 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड. And when oscillated from rest, so a potential difference 10 kilovolt, potential difference capital V, 10 kilo means 10 into 10 to the power 3 volt, that means also is 10 to the power 4 volt. It enters in a region of magnetic field 0.4 Tesla. Magnetic field V is equal to 4 into 10 to the power minus 1 Tesla. And thus that V is perpendicular to B. The radius of the circular path described by will be dash. अरे V perpendicular to B, radius of the circular path का फॉर्मूला तो हमको पता है, R is equal to mv by qb. ध्यान से देखो, m and q both are absent, बी केयरफुल. तो m and q absent, नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली. और एक फॉर्मूला है p by qb, ये भी हेल्प नहीं करेगा. और एक फॉर्मूला है 2m के रूट ओवर बाई क्यू बी, फिर से यहाँ पे एम क्यू अवेलेबल है, नहीं करेगा. तो 2m के का वैल्यू q इंटू एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल रूट ओवर डिवाइड बाई क्यू बी. और इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, तो 2m क्यू भी एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बाई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर होल रूट ओवर. सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 2m एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बाई क्यू बी स्क्वायर का होल रूट ओवर. तो सारे टर्म पे तो मास अवेलेबल है, चार्ज अवेलेबल है, तो क्या करेंगे, देखो व्हेन ऑसिलेटेड फ्रॉम ए रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस. अच्छा, फ्रॉम रेस्ट टू ऑसिलेट हुआ है, वी नो, तो ऑसिलेट हुआ है मींस वर्क डन बाय द ऑसिलेटिंग पोटेंशियल gets converted to its kinetic energy. So kinetic energy is equal to work done by oscillating potential, work done by W by potential, oscillating potential. And we know del V is equal to W by Q. तो W कितना, Q इंटू oscillating potential तो दे रहा है, del V दे रहा है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू oscillating potential. रेडी. तो m बाई q का वैल्यू यहाँ से निकाल दो, m बाई q इज इक्वल टू 2 इंटू oscillating potential बाई, so instead of this m by q, instead of this m by q, we can use 2v by speed square, 2 into कैपिटल V, ए भाई 2 तो 2 है अभी, यहाँ पे एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल V है, डिवाइड बाई बी स्क्वायर भी है. इंस्टेड ऑफ दिस m बाई q वी कैन राइट 2 इंटू एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बाई यार इन उसका होल रूट ओवर. समझ में आया. ये रेड कलर में मैं इसको ये क्या हूँ ना हाईलाइट, इसी का वैल्यू लिखा हूँ मैं. 2 इंटू 2 4, 4 का रूट ओवर कितना 2, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल स्क्वायर का रूट ओवर v, देन बी स्क्वायर का रूट ओवर तुम्हारा b, यहाँ पे v. देखो ये सब डाटा अवेलेबल है ना, वेरी गुड अवेलेबल है. तो 2 इंटू एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इज 10 टू द पावर 4, देन मैग्नेटिक फील्ड इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, देन हमारा स्पीड कितना दे रखा है 10 टू द पावर रखा है, 10 टू द पावर कितना 6, कितना आ रहा है 1 by 2 into 10 to the power, ये 6 minus 1 5, 4 minus 5 is minus 1, है ना, क्या होगा, ये 1 by 2 means what, 1 by 2 means 0.5 ना, 0.5 means 5 into 10 to the power minus 1, तो कितना 10 to the power minus 1 अवेलेबल है, 5 into 10 to the power minus 2 मीटर.
दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इज योर आंसर, 5 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे ही कर सकते हो, और भी शॉर्ट ट्रिक में हो जाएगा। ऐसे करते करते बस हो गया, और क्या। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 35। आज कहाँ तक कंप्लीट करेंगे हम लोग? 40 या 50? एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन माय पेशेंस एंड द पेन up to which we can up to which I can sustain। देखो, a current of 10 by 5 ampere, that means given दे रखा है तुमको current I is equal to, तो व्हाइट कलर में करो, current I is equal to given 10 by 5 ampere maintain in a circular loop of radius 15 centimeter, radius दे रहा है 14, the value of the dipole moment, भगवान क्या है फॉर्मूला, m is equal to I into a, सो करंट कितना 10 by पाई, तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द लूप पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, मीटर पे कन्वर्ट करोगे तो -4 मिलेगा, -4 मीटर। ओके, तो पाई आर स्क्वायर 10 by पाई इंटू का वैल्यू पाई इंटू 14 इंटू 14 10 टू द पावर, पाई पाई कैंसिल होने के बाद ये तुम्हारा 196 -4 + 1 -3, 196 divided by 10 to the power 3, that means 0.196 and उसका यूनिट एम्पियर मीटर, 0.196 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अरे बढ़िया क्वेश्चन था, 2025 का क्वेश्चन। रेडी, क्वेश्चन नंबर 35 डन। नेक्स्ट, थर्टी सिक्स। देखो बायो शॉर्ट लॉ तुमको पता है चल रहा नहीं, बायो शॉर्ट लॉ तो जरूरी है इसको। ये बायो शॉर्ट लॉ देखो, थोड़ा रिकल कर दे रहा हूँ। ये करंट कैरिंग कंडक्टर सपोज एक्स वाई एंड करंट जा रहा है कितना, आई करंट जा रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग ले जाएंगे। ओके, करंट एलिमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग आई डी एल वेक्टर, में करंट जा रहा है आई, लेंथ डी एल, देन एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर, ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट, द एंगल इज थीटा। तो डीबी का वैल्यू क्या मिला, डीबी का वैल्यू मिलेगा हमको, डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, मैग्नीट्यूड लिखो बस, डीबी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आई, थीटा किसके बीच में एंगल, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर। तो मेरा कहने का मतलब इफ पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द ओआर देन द थीटा विल बी 0 एंड थीटा 0 होने से साइन 0 0 एंड ये डीबी कितना होगा 0, साला इंटीग्रेशन डीबी कितना होगा 0। सो इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इफ ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर और ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये सपोज स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो ये तुम्हारा आइडियल वेक्टर, ये तुम्हारा आर वेक्टर, ये थीटा 0 होगा तो ये भी पॉइंट हो सकता है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ से होने से थीटा 0 हो जाएगा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ से होने से थीटा 0, यहाँ पे होने से ये तो कंडक्टर नहीं है, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंडक्टर। ओके, so if point of observation lies on the line of action of the current carrying conductor or on the surface of the current carrying conductor, then magnetic field will be 0 because the angle between current element and r vector that is 0। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा तीनों, ये देखो ये में बस यहाँ पे 3 करंट कैरिंग वायर दिखाई दे रहा है तुमको, 1 ये 2 ये वाला 3 एंड 1 एंड 3 का देखो लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अवेलेबल है, सो बी ड्यू टू 1 कितना होगा 0 एंड इसका भी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अवेलेबल है, b3 विल बी 0, सो b2 कितना होगा, ये एक सेमी सर्कल उसका रेडियस r, ये उसका सेंटर, सो बी एट सेंटर सेमी सर्कुलर वायर कितना होगा फॉर्मूला, हाफ इंटू सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए। थ्योरी अच्छा है तो बस समझ जाओगे। तो आंसर कितना होगा म्यू नॉट आई बाई 4 है, रेडियस आर दे रहा है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, आंसर होगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए। ओके, ये तुम्हारा रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक।
कोई भी एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर दे रखा है एंड उसका सेंटर पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। सर्कुलर करंट कैरिंग वायर कैरिंग करंट I एंड रेडियस a एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 इनटू I बाय a। सेमी सर्कल होने से हाफ इनटू सर्कल का फार्मूला, क्वाड्रेंट होने से हाफ इनटू सॉरी 1 बाय 4 इनटू सर्कल का फार्मूला, एनी आर्क होने से सर्कल का फार्मूला इनटू थीटा बाय 2 पाई, दैट इज म्यू नॉट बाय 2 इनटू I बाय a इनटू थीटा बाय 2 पाई। ये भी क्वेश्चन अवेलेबल है, विल सॉल्व। और जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको नोट करो, नोट तो करते करते बहुत सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो यू कैन ग्रास्प दिस कॉन्सेप्ट। नंबर 37 दे रखा है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन शायद। यस, a galvanometer can be converted to an ammeter. A galvanometer can be converted to an ammeter of a desired range by connecting a small resistance in parallel, that is called shunt. This small resistance is known as shunt resistance डिवाइस। ओके, ये पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, भगवान बढ़िया क्वेश्चन था ये रीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। ये प्रोटॉन एंड अल्फा डिग्री, प्रोटॉन का पता है तुमको, प्रोटॉन है तुम्हारा प्रोटॉन, प्रोटॉन का सॉल्यूशन H11 एंड ये तुम्हारा अल्फा डिग्री, डबल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अल्फा डिग्री, दैट विल बी He24। अब विच कौन एंटर्स विद द सेम वेलोसिटी v, दोनों का सेम वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v। क्वेश्चन पूछा है v वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, हाँ तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कितना होगा, 3 r अल्फा। आर का फॉर्मूला क्या है रे, v बाई v एंड b तो कांस्टेंट, व्हिच इंप्लाई r इज प्रोपोर्शनल टू m बाई q। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे r प्रोटॉन बाई r अल्फा इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास, तो मास प्रोटॉन बाई मास अल्फा, प्रोटॉन बाई अल्फा पूछा है ना, इनटू इनवर्स प्रोपोर्शनल टू q, सो q अल्फा बाई q। अच्छा से देखकर बोलो, मास प्रोटॉन बाई मास अल्फा, मास कौन है रे, ये ऊपर वाला चीज, तो मास प्रोटॉन कितना m, मास अल्फा कितना 4m, q अल्फा देखो 2q, देन इसका q प्रोटॉन q, तो q q कैंसिल हो गया, mm कैंसिल हो गया, ये 1/2 ही बचा हुआ है। देखो आंसर, ऑप्शन अवेलेबल है क्या, 1/2 ऑब्वियसली अवेलेबल है, इज करेक्ट 1/2। ओके, दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। 38 हो गया, देन 39। वही सेम टाइप का क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है पता है, फिर बार बार ऑब्जर्व करोगे तुम्हारा ऑप्शन, ऑप्शन कैसा ऐसा कि माइक्रो टेस्ला का था ना, माइक्रो न्यूटन, ऐसे सॉल्व किए थे हम लोग। देखो कौन सा चीज अप्लाई कर रहा हूँ दिमाग में, स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग ए करंट 2 एम्पियर इन एक्स डायरेक्शन। अच्छा 2 एम्पियर करंट जा रहा है, अभी करंट जा रहा है 2 एम्पियर, करंट जा रहा है 2 एम्पियर इन एक्स डायरेक्शन। याद रखो ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज एग्जिस्टिंग, बी वेक्टर इक्वल टू 0.6 j कैप प्लस 0.8 a cap much Tesla. It's switched on in the region the force acting on the 10 centimeter length. L वेक्टर कितना होगा 10 सेंटीमीटर, करंट जा रहा है कौन सा डायरेक्शन आई कैप पे, बस 10 सेंटीमीटर मींस 10 into 10 to the power minus 2, that is equal to 10 to the power minus 1 I cap, meter I cap, sorry। Next, the force acting on the this much conductor कितना होगा, F vector equal to I into L vector cross, तो F इक्वल टू आई कितना होगा देखो, आई कितना तुम्हारा, आई है तुम्हारा 2, देन एल वेक्टर 10 to the minus 1 आई कैप, बी वेक्टर 0.6 ए कैप प्लस प्लस 0.8 ए कैप, रेडी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखो 0.12 पे है, बस आराम से सॉल्व कर पाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। 2 इंटू एक काम करो, ये 10 to the minus 1 को बाहर ले आओ, that means 1/10, so 2/10 रिमेनिंग टर्म आई कैप क्रॉस, इसको लिखो
6/10 जे कैप प्लस 8/10। ओके, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 1/10 कॉमन आ जाएगा। 2/10 इंटू 1/10 और क्या बचेगा? 6 इंटू 1 आई क्रॉस जे प्लस 8 इंटू 1 8 आई क्रॉस के। के क्रॉस आई नहीं रे, आई क्रॉस के पास 1 है। 1 इंटू 8 8 देन आई क्रॉस के। बी केयरफुल, ब्रैकेट क्लोज। देन ये हो जाएगा तुम्हारा 2/100। देन ये होगा 6 आई जे के प्लस आई क्रॉस के होगा माइनस जे, हो जाएगा -8 जे क्या हो गया। तो मल्टीप्लाई करने से 6 इंटू 12 सॉरी 12 12/100 होगा तुम्हारा 0.12 क्या माइनस 8 इंटू 2 16/100 0.6 मास फोर्स पूछा है न्यूटन। 0.12 के क्या, अच्छा -0.16 जे क्या प्लस 0.12 के क्या न्यूटन। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, बस देखने से ही पता चल जाएगा। 2-3 क्वेश्चन इसको लगा दो बस। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हाथ बड़ा सेटिंग हो जाएगा। हाथ 29 फिनिश्ड। 9 फिनिश होने के बाद विल प्रोसीड टू आंसर क्वेश्चन नंबर 40 एंड बाद कितना बजा है लो टाइम कितना हुआ है देखने के बाद विल प्रोसीड, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करूंगा। ओके, बट तो कमेंट देना नहीं भूलोगे। ओके, तो आसान क्या पूछा है देखो, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन xy प्लेन making an angle acute angle less than 90 greater than 0 and with x axis. Charge particle is moving with velocity v in xy plane. तो ये सपोज xy प्लेन, ये तुम्हारा y, ये तुम्हारा x इन xy प्लेन मेकिंग एन एंगल acute angle with x axis. ओके, ये तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर सब x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल क्रिएट किया है ना। तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट मिल रहा है तुमको। एक है तुम्हारा v cos थीटा एंगल अटैचिंग कंपोनेंट cos कंपोनेंट, दूसरा विल बी v sin थीटा। परफेक्ट। देन इफ a uniform magnetic field v is applied in a region along the y axis, ओके y axis डायरेक्शन पे हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है। दिखाई दिया? वेरी गुड। तो ये पूछा है द पार्टिकल विल मूव इन ए हेलिकल पाथ। अरे भाई हेलिकल पाथ होगा नहीं, फिर से चेक करो फर्स्ट। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये लिखेंगे हम लोग v cos theta velocity vector is perpendicular to v vector means resulting path will be circular। तो ये बोल रहा है बस तू ऐसे चल सर्कुलर पाथ में, लेकिन v sin थीटा उसको क्या बोल रहा है, तो इस डायरेक्शन पे सीधा जा। ये बोल रहा है तू सर्कल कर, ये बोल रहा है v cos थीटा बोल रहा है तू सर्कुलर पाथ में, एंड ये बोल रहा है तू ऊपर चला जा, y डायरेक्शन पे ऊपर चला जा। देखो सर्कुलर पाथ करो ऊपर चला जा, सर्कुलर पाथ करके करते करते ऊपर चला जा, दैट मींस पाथ विल बी हेलिकल। एंड पूछा है व्हिच इज एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है गधा। एक्सिस पैरेलल टू क्या हो रहा है, y एक्सिस हो रहा है ना, ये x एक्सिस नहीं है। ये है तुम्हारा रॉन्ग, असोसिएशन रॉन्ग हो गया ना, असोसिएशन गलत हो गया। देन रीजन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग its velocity vector of particle। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इज अलोंग द ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डायरेक्शन। ये यहाँ पे लिखा है इज अलोंग द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, दिस इज रॉन्ग, इज नॉट अलोंग द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इज अलोंग द ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, छोड़ो, तो रीजन नहीं लिखना चाहिए हमको, बस आइडेंटिफाई कर चुका मैं, आंसर भी बोल दिया। तो बोथ ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो रात में कितना बजा चुका है, देखो रात 3 हो गया, एक्चुअली रात 3 हो गया। तो यहाँ से हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। नेक्स्ट सेशन पे हम लोग ये 41 से शुरू करेंगे।
पास 60 इफ पॉसिबल 60 प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट्स अवेलेबल है ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है बस। ओके, सो वेट अप टू आवर नेक्स्ट क्लास। तो आज का सेशन पे आई थिंक सेशन बहुत अच्छा जा चुका है एक्चुअली। ओके, देयर आर 23 slides, so try to cover up all these questions that it will be beneficial for you. Okay, and these all are only your PSC board question, latest question भी तुमको दिखाई दे रहा है। You may check this question from the question paper. Okay, you will find the same question. So with this, I am going to conclude this PYQ session. Wait up to our next session, that is session number 3. तो ये सेशन अभी हमारा चल रहा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट ऑल दिस क्वेश्चंस, बट because of time constraint, I am unable to cover up all these questions as soon as possible. Okay, so thank you and have a nice day. Give your support, give your comment. Okay, have a nice day. Thank you.